Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Okay. So, how are you all? Fine, ma'am. What about you? I am fine. Chaliye, you all have joined. अच्छा ठीक है. The screen is shared to you all. सबको projection वाला document दिख रहा है ना? Yes, ma'am. तो when we covered this particular document, ये topic पूरा cover कर लेंगे. Most probably आज ही cover हो जाएगा. And then we're going to start unit 3. We have covered unit 4. We have covered unit 1 and 2. Now there's only one unit left. There, that is all about curves. Curves and illumination models क्या होते हैं और rendering methods क्या है. तो 3-4 topic है उसके अंदर. We're going to cover that. So most probably mid of October तक we'll be able to finish the syllabus. ठीक है. और then we'll be doing some kind of revisions. और बाकी आप अपने डाउट्स पूछिए. बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही है, सबके 3-3 यूनिट होने वाली है ना. चलो. So the topic of today's class is projection. What is projection and what are the various types of projection? So the very first question that comes in the mind is, what is the need of projection? Why do we do that? और projection होती क्या है? Need of projection क्या है? बताओ. Why we undergo projection? Projection है क्या? मैंने कल बताया था. Yes, ma'am. तो क्या बताया था projection के बारे में? मैम आपने बताया था ये ऐसा मतलब वो है टेक्निक है लाइक और कि हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम उसे 2D प्लेन पे उसको शो करते हैं. Very good, very good. So projection की need क्या है? When we are doing 3D viewing transformation. ठीक है, जब हम viewing transformation कर रहे हैं, that means we want to produce an image of the real world 3D object onto the view plane. Onto the view plane का मतलब क्या है? Onto the project or your display device. कोई भी डिवाइस पे अगर हम उसको दिखाना चाहते हैं, you know that the dimension of a display device is 2 dimensional, right? And you want to convert, अगर हम 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें 3D ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है 2D इमेज में, then we need to undergo projection. तो projection की definition क्या हो गई? Projection is a process or we can say a technique which is used to transform a 3D object into a 2D plane. Clear है? It is defined as the mapping or transformation of the object into a view plane. और व्यू प्लेन क्या है यहाँ पर आपका? डिवाइस सरफेस. ठीक है. सो अगर आप डायग्राम देखो प्रोजेक्शन का, तो यहाँ पे ये तो देखो, ये डायग्राम देखो. अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैरेलल प्रोजेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन. 2 तरीके की प्रोजेक्शन होती है आपकी. एक होती है पैरेलल प्रोजेक्शन जो होती है ना, इट इज ऑफ 2 टाइप. वैसे तो इसका जो टाइप्स का चार्ट है वो बहुत बड़ा है. पैरेलल की भी ऑर्थोग्राफिक ओब्लिक होता है, फिर ओब्लिक की भी 2 तरीके की होती है, कैबिनेट एंड कैविलर प्रोजेक्शन. देन आपका जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, दैट इज आल्सो ऑफ 3 टाइप्स. तो ये पूरा एक लॉन्ग हायरार्किकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर है. बट आपके सिलेबस में इतना ज्यादा प्रोजेक्शन के बारे में नहीं है. बट यस, प्रोजेक्शन जितना है उतना जरूर आता है एग्जाम में. Projection is basically of 2 types. One is called parallel projection and one is called perspective projection. ठीक है, ये मेरे से तो लिखा ही नहीं जाता इससे. और ये आपका perspective projection. तो perspective projection और parallel projection के बारे में we will be studying later on. Just see the diagram first. ये देखो, ये आपका एक object है. Now this object is kind of a cuboid. ये क्यूब की तरह दिख रहा है आपको. It is a kind of cube. जब इसका व्यू प्लेन पे, और ये आपका क्या है? व्यू प्लेन.
अब आपने क्या किया, यू जस्ट एक्सटेंड द लाइंस फ्रॉम ईच वर्टेक्स। एक आप फ्रंट व्यू देख रहे हो और यहाँ से लाइंस को एक्सटेंड कर रहे हो, and all these extended lines are parallel to each other and they are meeting the view plane, intersecting the view plane at this point। इनको बोलते हैं projection vertex। देन फिर हमने क्या किया, उन वर्टेक्स को जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया उनको ज्वाइन करके ये एक व्यू तैयार किया। सो दिस इज काइंड ऑफ एन एग्जांपल व्हिच वी कॉल्ड एज पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, बेसिकली आप करते क्या हो, दिस आर योर लाइन ऑफ साइट, की मतलब कि आप यहाँ से देख रहे हो और ये ना बेसिकली दीज जो लाइंस है, किसका माइक ऑन है, ये जो लाइंस है दीज, रोहित म्यूट योरसेल्फ, these lines are parallel to each other। So parallel projection is a projection of an object in 3D space onto a fixed plane referred to as projection plane या image plane। ये आपका 3D space है, यहाँ से आप इस object की projection कराना चाहते हैं। तो what you have done, you have basically extended the lines towards your view plane and you have stopped where you find the intersection of the point with the view plane। और उसको फिर उस पॉइंट को आपने आपस में एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके यू हैव मेड अ इमेज ऑफ दिस 3D ऑब्जेक्ट onto the view plane। इस तरीके की प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हो, दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्शन इज नोन एज पैरेलल प्रोजेक्शन। एंड पैरेलल प्रोजेक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक एंड वन इज कॉल्ड ओब्लिक। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कब बोलते हैं, जो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, लेट मी गो अप। देखो प्रोजेक्शन क्या होता है, ये सबको क्लियर हुआ है, व्हाट इज प्रोजेक्शन, why we are doing projection, we want to transform 3D object onto the view plane which is two-dimensional in nature, so we need to undergo projection। Projection is basically of two types, one is parallel projection and one is perspective projection। अब parallel projection और perspective projection में हमेशा difference पूछा जाता है आपसे, ठीक है। difference basically क्या है, difference तो हम पढ़ेंगे, पहले हम understand करते हैं what is parallel projection। देखो पहली बात तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका इस तरीके का ऑब्जेक्ट है। अब इसके व्यू कौन कौन से हो सकते हैं, इसका फ्रंट व्यू भी हो सकता है, आप सामने से इस ऑब्जेक्ट को देखो, या आप ऊपर से इस ऑब्जेक्ट को देखो, या यू विल लुक एट द साइड व्यू, देखो ये राइट व्यू है, ये इसका लेफ्ट व्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके सारे प्रोजेक्शन प्लेन आपको दिखाए हुए हैं। पैरेलल प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन यू एक्सटेंड ईच वर्टेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू प्रोजेक्ट, उसके वर्टेक्स को एक्सटेंड करो जब तक दे विल इंटरसेक्ट योर प्रोजेक्शन प्लेन और द व्यू प्लेन। अब देखो खुद देखो, अगर आपका इस तरीके का ये एक तरीके का कार देख लो ना, इस काइंड ऑफ कार जिसका आप आगे से अगर इसका व्यू देखोगे तो ये ऐसा ही तो दिखेगा, क्योंकि देखो ये वाली चीज तो एज इट इज ऐसे आ जाएगी और ये वाली जो लाइंस है ये आगे एक्सटेंड करके आपको इस तरह से दिखेगी। तो दिस विल बी द फ्रंट व्यू, मोरओवर दिस विल, यहाँ ये इसका साइड व्यू होगा। हर एक वर्टेक्स को आपने एक्सटेंड किया है एंड ऑल द लाइंस आर पैरेलल इन नेचर एंड यू विल एक्सटेंड दोज लाइंस। तो ये आपका यहाँ पर कोई भी सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन नहीं बनेगा। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, इट इज अ पॉइंट वेयर दीज लाइंस गेट कन्वर्ज। जब ये लाइंस आपस में मिल जाती है ना, जैसे यहाँ इस वाले डायग्राम में देखो, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ देखो ये एक आपका लाइन है, इस लाइन को आपने एक्सटेंड किया, इसके वर्टेक्स को एक्सटेंड किया यहाँ पे, और अगर इनको आगे जाके मिलाते हो तो इस पॉइंट को आप बोलते हो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच यू आर प्रोजेक्टिंग ऑन टू द सेम। इस मतलब कि जहां से देख रहे हो वो डिस्टेंस फाइनाइट है, ऑब्जेक्ट और आई का डिस्टेंस आपस में, इट इज अ फाइनाइट डिस्टेंस। वेयरएज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल प्रोजेक्शन में कोई भी सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन नहीं होता, मतलब कि when the center of projection situates at an infinite distance, because these lines are never gonna meet because they are parallel to each other, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रोजेक्शन को आप बुलाते हो पैरेलल प्रोजेक्शन। और पैरेलल प्रोजेक्शन जो है दो तरीके का होता है,
तो यहाँ पे इन पैरेलल प्रोजेक्शन हम पढ़ते हैं कि द इमेज पॉइंट्स आर फाउंड। इमेज पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं? ये दीज आर द इमेज पॉइंट्स। कैसे जनरेट हुए? आर फाउंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द व्यू प्लेन, ये आपका व्यू प्लेन है, एंड इंटरसेक्शन ऑफ द व्यू प्लेन विद द पैरेलल प्रोजेक्शन। एंड यही मैं शुरू से बता रही हूँ कि जब आप इसको एक्सटेंड करते हो, और कब तक एक्सटेंड करते हो? जब तक आपका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आता, मतलब कि जो ये एक्सटेंडेड लाइंस है वो जाके मिलती हैं, किससे मिलेंगी? व्यू प्लेन से। उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन वर्टेक्स, और उस पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें एक इमेज प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन होती है, जिसमें ऑल द एक्सटेंडेड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड दीज लाइंस आर नेवर गोना मीट, सो देयर इज a infinite distance, or you can say the center of projection situates at an infinite distance in parallel projection. A parallel projection basically दो तरीके की होती है, one is orthographic and one is oblique. ऑर्थोग्राफिक और ओब्लिक का मतलब क्या है कि अगर तो ये देखो, जैसे ये आपका प्रोजेक्शन प्लेन है, ये दिस लाइन इज ए प्रोजेक्शन प्लेन जहां पर आपने इस लाइन को प्रोजेक्ट कराना है। जब ये जो लाइंस इससे एक्सटेंड होके, ये देखो ये वाली लाइन एक्सटेंड होके यहाँ पे टच कर रही है, ये वाली लाइन एक्सटेंड होके यहाँ पे टच कर रही है, व्हेन इट इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल विद द प्रोजेक्शन प्लेन, और यू कैन से व्हेन द एक्सटेंडेड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन, दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्शन इज बीइंग टर्म्ड एज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर क्लास लेते हो तो सोते हुए क्लास मत लिया करो प्लीज। नो मैम। चल रही है, you have to sit properly, you have to note it down, कुछ diagrams note करो। कर लिया। नहीं, I'm talking about those who are doing this. आप लोग अपना पोस्टर तो ठीक रखो, लेटे हुए कोई पढ़ता है क्या? If you are at home, I know you are at your comfort place, but you have to sit properly and you have to make notes, कुछ drawings, कुछ diagrams बनाओ, कुछ अगर ऐसे लेथार्जिक वे में क्लास अटेंड करते हो तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, जैसे कोई मूवी चल रही हो। So what is orthographic projection, रोहित? क्या होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? क्या बता रही हूँ मैं इस डायग्राम के बारे में? मैम इसका तो नहीं पता, लेकिन जो भी इससे पहले बता रहे थे उसका बता सकता हूँ मैं कि 3D ऑब्जेक्ट को जब हम 2D प्लेटफॉर्म पे वो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसके प्रोजेक्शन के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं। इसके हाँ। दो टाइप होते हैं, एक पैरेलल प्रोजेक्शन और दूसरा वाला मैं भी ध्यान नहीं दे रहा था, थोड़ा सा मम्मी आ गई थी तो मैं उसमें कर रहा था, जिसमें पैरेलल प्रोजेक्शन, सेकंड वाला पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है? पहले प्रोजेक्शन में मैम वो जो हमारी इसमें एक तो ये है कि वो क्या बोलते हैं सेंटर। Yes, Prem, help him. Just help him out to explain. मैम उस मतलब सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट को एक ऐसे इनफिनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं कि जो प्रोजेक्शन हो वो पैरेलल टू ईच अदर हो। So here in parallel projection, your center of projection is at infinite distance, and all the projected lines, इनको क्या बोलते हैं? Projected lines are parallel to each other. They're never gonna meet. ठीक है, that's why इसका नाम क्या है? Parallel projection. और आपकी इमेज कैसे प्रोड्यूस होती है? These projected lines when intersect with your view plane, उसको हम बोलते हैं projected vertex, and we are going to join these vertex together in order to produce the image. ठीक है, तो ये है आपका पैरेलल प्रोजेक्शन। अब पैरेलल प्रोजेक्शन जो है दो तरीके की होती है, मैं ये बात कर रही थी, तो वन इज ऑर्थोग्राफिक एंड वन इज ओब्लिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है? ऑर्थोग्राफिक मतलब कि जो प्रोजेक्टेड लाइंस है, ये लेट्स सपोज दिस इज योर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन and this is your original object, and when I'm going to extend the vertex of this point A and B and keep on extended until it intersect with your plane of projection, when it makes an angle 90 degree with your plane of projection, or I can say when the projected lines are perpendicular to your plane of projection, such kind of projection is being called as orthographic projection. So orthographic projection कब occur होती है? It occurs when the direction of the projection is perpendicular.
in which the direction of projection is not parallel to any of the three principal axes. Principal axis का मतलब यहाँ पर आपकी जो 3 axis है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये डेफिनेशन याद करना है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्टेड लाइंस है दे आर गोना मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड दे आर परपेंडिकुलर टू योर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. सो दिस इज योर डायग्राम ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. देन दूसरा हमने बात की थी ओब्लिक. ओब्लिक मतलब होता है जब when the angle between the projectors, ये है आपके projectors और ये है plane of projection, when the angle between the projectors and the plane of projection is not equals to 90 degree, मतलब 90 degree से कम हो या ज्यादा हो, बेसिकली कम ही होता है, then the projection says oblique projection. Oblique projection का डायग्राम देखो. Now let's suppose this is your projection plane. This is your projection plane. And this is the point you are projecting to. All right. So this is a point and which is having 3 coordinates x, y, z. And when you are extending the vertex, तो ये आपने इस 2 तरीके से extend कर सकते हो, एक ऐसे और एक ऐसे. ठीक है. तो ये आपने अपना एक plane बना दिया. ये मतलब एक line बनाई है, reference line. और इस point को जब आप extend कर रहे हो, then you are looking कि ये यहाँ पर आके इसने intersect, मतलब इस line के साथ point intersect किया, then this projected line is making an angle 90 degree. देख रहे हो, it is perpendicular onto this reference line. और ये आपका projected point हो गया. इस वाली projection को तो हम बोल रहे हैं orthographic, because ये 90 degree का angle बना रही है, it is perpendicular. But when we are looking at this projected line, ये वाला, और इसका आपने बेस लाइन कौन सी बना दी, ये इसकी बेस लाइन बना दी, तो ये वाला जो एंगल है अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. ये तो 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इट इज लेस देन, स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री है. देख रहे हो. तो इस तरीके की प्रोजेक्शन को आप क्या बुलाते हो, ओब्लीक प्रोजेक्शन. ठीक है. तो दिस इज पीओपी. हाँ बोलो. z इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे प्लेन, ये क्या है, प्रोजेक्शन प्लेन है. दिस इज योर प्रोजेक्शन प्लेन. z equals to 0 is the projection plane. z axis वाला कि अब z जो principal axis है उसकी बात कर रहे हैं कि ओके प्रोजेक्शन प्लेन जो भी होता है ना, जिस प्लेन पे आपने इंटरसेक्ट करा रहे हो, मे बी आप x प्लेन पे कराओगे, y प्लेन पे कराओगे, z प्लेन पे कराओगे, तो यू आर इंटरसेक्टिंग ऑन द z, यू आर टेकिंग कंसीडरिंग द 0 z equals to 0 प्लेन. मोस्ट ऑफनली जब भी आप किसी भी बुक में देखोगे तो हमेशा z equals to 0 प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ही लिखा होता है, कि हमारा जो प्लेन है जिसमें हम अपने प्रोजेक्शन करा रहे हैं वो z प्लेन पे करा रहे हैं, which is z equals to 0. This is your plane of projection. क्योंकि z equals to 0 है, कुछ सोचो ना, क्योंकि ये आपका 2D लाइन है ना, 2 डायमेंशनल है जिसमें x और y एक्सिस ही होते हैं, तो z equals to 0 रहेगा ना. ठीक है. So z कोऑर्डिनेट हमेशा remains 0. So you are intersecting on z equals to 0 plane of projection, and you are talking only about x and y coordinates because it is your 2-dimensional projection. So oblique projection, orthographic projection, parallel projection. Clear है? यस मैम. कौन बताएगा? नेहा, क्या चल रहा है तुम्हारा क्लास में? हाँ जी नेहा. यस मैम. समझ में आ रहा है आपको? यस मैम. क्या होता है पैरेलल प्रोजेक्शन? क्या होता है पैरेलल प्रोजेक्शन? अरे अभी तो बताया. कुछ समझ में आया है अब तुमको? कुछ समझ में आया तो वो बोल दो, क्या समझ में आया है? देखो चुप रहने से कुछ होगा नहीं. अगर तुम चुप रहोगे ना तो इस तरीके से पूरा बीसीए खत्म हो जाएगा. अभी एक लास्ट सेमेस्टर बचा है. अब मतलब यू आर द सेम जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में थे, अब थर्ड ईयर में भी आपका सेम ही नेचर है. यू हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन योरसेल्फ. अगर आपका यही रहेगा तो बीसीए करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा.
क्योंकि आपको पता है कि बाहर कंपटीशन कितना है, कितने बच्चे हैं जो बीसीए करके निकलेंगे। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट एबल टू टेल, कम्यूट नहीं कर पाओगे तो कैसे कर चलेगा? कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। समझ में आया कि नहीं आया है? Who will tell me? अमन, क्या समझ में आया है? Aman Rawat, you there in the class? यस मैम। हाँ जी, बताइए क्या होता है पैरेलल प्रोजेक्शन? क्या होता है? इतना डिफिकल्ट है क्या? मैम जिसमें पैरेलल, मैडम पैरेलल लाइन होती है जो जिसमें एमर्ज करती हैं। पैरेलल लाइंस मर्ज नहीं होती, वो पैरेलल प्रोजेक्शन होता है। मतलब मैडम वो आप क्या नहीं सुन रहे थे क्लास में? यू वर नॉट लिसनिंग? नहीं मैडम ऐसा नहीं है। कौन बताएगा? मैम बोलो। मैम बेसिकली हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे थे पैरेलल लाइंस के डिस्प्ले पे। एक प्लेन है हमारे पास, लाइक वी हैव अ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो नहीं, पहले तो हमने पैरेलल पोजीशन पढ़ा जिसमें कि हमने दो उसके टाइप्स पढ़े, ऑर्थो और ऑब्लिक। तो हमने फर्स्ट जैसे देखा कि हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, लाइक हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर पैरेलल लाइंस को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसे डिस्प्ले कर रहे थे। लाइक हम उसको पोजीशन चेंज कर रहे थे, व्यू पोजीशन हम चेंज कर रहे थे। 3D ऑब्जेक्ट, लाइक 3D ऑब्जेक्ट है ना, जैसे फर्स्ट वाला ए है हमारे पास, देन वी हैव चेंज इन द 2D डिस्प्ले स्क्रीन में चेंज कर रहे थे। तो हम बार बार उसकी पोजीशन चेंज करके चेक कर रहे थे। चलो मैं बताती हूँ, रुको। देखो, सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है? इट इज अ टेक्निक थ्रू विच यू विल जनरेट अ 3D object onto the 2D plane. The image, you will generate the image of a 3D object onto the 2D plane, or you can say projection is a process of mapping or transformation of an object which is 3-dimensional in nature in a 2D view plane. ठीक है? So अब types of projection क्या क्या होती है? There is basically two types of projection. One is your parallel and perspective projection. Why the name parallel projection is being given? When the projected lines क्या होती है? ये these are the projected lines. अब आपको खुद पता है कि अगर कोई 3-dimensional object होता है, 3-dimensional object कैसा होता है? which has 3 coordinates. Every vertex has 3 coordinates. तो 3-dimensional objects की multiple view possible है। जैसे आप अगर फोटो भी लेते हो, कोई भी पिक्चर से करो, इफ यू आर टेकिंग अ पिक्चर और यू टेकिंग अ फोटोग्राफ, तो अगर आप सामने से ले रहे हो किसी ऑब्जेक्ट की, 3-dimensional ऑब्जेक्ट की, या लेफ्ट व्यू ले रहे हो, टॉप व्यू ले रहे हो, तो हर एक व्यू अलग अलग आएगा। तो इसी तरीके से प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन में योर सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जहां से आप कैप्चर कर रहे हो इमेज, उसका डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइनाइट नहीं है। ये वाला एग्जाम्पल जो फोटोग्राफ वाला एग्जाम्पल है ना, दैट फोटोग्राफ एग्जाम्पल विल बेस्ट सूटेड टू पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। जब मैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन पे अभी आऊंगी, देन ये वाला जो पिक्चर वाला एग्जाम्पल होगा वो सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। देखो, जितना दूर से पिक्चर लोगे उतनी छोटी पिक्चर दिखेगी, जैसे जैसे पास आओगे पिक्चर विल गेट लार्ज, है ना? मतलब कि आप अगर आपका सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो जो इमेज प्रोड्यूस होगी दैट विल बी स्मॉल इन साइज, एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन एंड द ऑब्जेक्ट, if the distance is less, the image that will produce is large in size. तो
shortening of the image will occur in perspective projection, but यहाँ पे parallel projection में there is no shortening of the image occurs. The picture will remain in same size because the distance between the center of projection and the image and the object is infinite. Parallel projection में जो projectors होते हैं, जो extended lines है, are parallel to each other. They are never gonna meet. ठीक है? और जो image points generate होते हैं, these are the image points. Image points क्या है? These are the intersection of the extended lines with your view plane. और उस image points को आपस में straight line से join करके we have generated the image. So this is your parallel projection. Parallel projection दो तरीके की होती है. One is orthographic. Orthographic के अंदर all the projected lines are making an angle of 90 degree with the plane of projection, and when the projected lines are not equals to the angle between the projected lines and the plane of projection is not equals to 90 degree, then it is kind of a projection which is termed as oblique projection. तो ये आपका base बनाया है और ये आपका पॉइंट को एक्सटेंड कराया है, तो इस बेस के साथ ये जो लाइन सेगमेंट है कि अल्फा एंगल बना रही है जो कि 90 डिग्री के बराबर नहीं है. तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ओब्लिक प्रोजेक्शन. एंड अगर इस सेम पॉइंट को हम इस तरीके से प्रोजेक्ट कराते हैं और एक्सटेंड करके यहाँ पर लेके आते हैं व्यू प्लेन पे, तो ये इसका बेस लाइन है, इसके साथ इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो दिस इज अ पॉइंट व्हिच इज हैविंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. तो ये एग्जांपल आपका ओब्लिक और ऑर्थोग्राफिक दोनों का. इज इट क्लियर मैम? व्हाई वी सेड ओब्लिक? हाँ जी, ओब्लिक क्यों ओब्लिक बोल रहे हैं? प्रोजेक्शन का ये वाला है ना, ये ओब्लिक प्रोजेक्शन है. पॉइंट ओबी और पॉइंट ओ आर ऑर्थोग्राफिक दिखाया हुआ है. तो इस फिगर में बेसिकली आपको दोनों बताए हुए हैं, ऑर्थोग्राफिक एंड ओब्लिक. ठीक है. यस मैम. और यहाँ पे इसके भी फर्दर दो टाइप्स हैं, बट इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. अगर याद कर सकते हो तो दैट इज ओके, बट रहने दो. कैविलियर प्रोजेक्शन होता है और एक होता है कैबिनेट प्रोजेक्शन. व्हेन योर एंगल इज लेस देन 45 डिग्री देन इट इज कैविलियर. व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन इट इज कैबिनेट. तो ये इतना ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इट हियरसेल्फ कि पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होती है. पैरेलल प्रोजेक्शन की डायग्राम पता होना चाहिए, उसकी दो पता होना चाहिए, दैट इज ऑर्थोग्राफिक एंड ओब्लिक. ओब्लिक का डायग्राम, ऑर्थोग्राफिक का डायग्राम, दैट्स इट. ठीक है. उसके बाद पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का मैंने आपको एग्जांपल बहुत बार दिया है. पहले तो एक डायग्राम देखो, उसके बाद क्लियर होगा. देखो ये आपका व्यू प्लेन है. z equals to 0. दिस इज योर व्यू प्लेन. ऑलराइट. एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट AB, your line segment that you want to project onto your view plane. अब प्रोजेक्शन में करते क्या हो, जो आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस होते हैं उसको एक्सटेंड कराते हो. और कहाँ तक एक्सटेंड कराते हैं? व्हेन इट इंटरसेक्ट योर व्यू प्लेन. ये आपका व्यू प्लेन पे यहाँ पर मिला, तो ये, और आप देख कहाँ से रहे हो, ये मतलब सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? व्हेन द प्रोजेक्टेड लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, you keep on extended and they are going to intersect at a point. This point is being called as center of projection. इस वाले डायग्राम को फिर से यहाँ पर समझाया हुआ है कि लेट्स सपोज AB आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और AB को आपने अपने प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे, ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, एंड यू आर गोना एक्सटेंड दिस A vertex and B vertex which is intersecting the plane of projection at A dash, and this is B dash. So A dash B dash is a perspective projection of AB. और आप देख सकते हो कि AB की जो लेंथ है is greater than the line than the length of A dash B dash. क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पे foreshortening हो गई है. foreshortening क्यों हुई है? Because आप यहाँ से देख रहे हो और छोटी इमेज प्रोड्यूस हुई है. अगर ये डिस्टेंस और दूर का होता, अगर आप यहाँ से देख रहे होते और दूर से, तो और छोटा डिस्टेंस प्रोड्यूस होता. जैसे जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ टेकिंग अ पिक्चर. आप एक पिक्चर से एक इमेज कैप्चर करते हो, तो जितनी दूर से आप पिक्चर लेते हो उतनी छोटी पिक्चर प्रोड्यूस होती है, जितना पास आके पिक्चर लेते हो उतनी बड़ी पिक्चर प्रोड्यूस होती है. सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. So this is the perspective projection. Perspective projection क्या है? The distance between the center of projection and the image is finite. Infinite नहीं होता. Perspective projection में होता क्या है? We transform the points along projection lines which are not parallel and they converge to meet a finite point. So यहाँ पर we are transforming this point A dash B dash from A to B by converging these line segments at a point. इस point को आप क्या बुला रहे हो? Perspective projection. Perspective, sorry, इस point को आप क्या बोल रहे हो? Center of projection. ठीक है. So
distance between this and the object is finite, infinite नहीं होता, और ये lines जो होती है वो parallel नहीं होती। तो parallel projection का डायग्राम ये है, ये भी डायग्राम आप बना सकते हो। ऊपर वाला डायग्राम तो डिफिकल्ट है ना पैरेलल प्रोजेक्शन का, यहाँ पर ये वाला डायग्राम तो ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये वाला डायग्राम यू कांट ड्रॉ, तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज अ गुड वन, ठीक है। पैरेलल प्रोजेक्शन कहाँ पर यूज होती है मोस्टली? इट इज मोस्टली यूज बाय इंजीनियर्स, जब दे आर डूइंग जो भी ड्राइंग्स, या सिविल इंजीनियर्स को कोई भी अपने उसमें ड्राइंग्स करनी होती है ना, कोई भी मेजरमेंट जिसमें उनको एग्जैक्ट डायरेक्ट मेजरमेंट्स चाहिए होती है, देन दे आर गोइंग टू यूज पैरेलल प्रोजेक्शन, ठीक है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया कि जिसमें जो प्रोजेक्टर लाइंस है, ये आपकी प्रोजेक्टर लाइंस है, ये इंटरसेक्ट करती हैं, दे गोइंग टू कन्वर्ज मतलब दे मीट एट अ पॉइंट व्हिच वी कॉल एज सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, और बेसिकली दिस इज योर लोकेशन जहां से आप देख रहे हो, तो इनको आप लाइन ऑफ साइट भी बुलाते हो, ठीक है। दे आर पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज दे आर गोना कन्वर्ज एट अ पॉइंट व्हिच वी कॉल एज सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। तो दिस, इस तरीके की प्रोजेक्शन को आप बोलते हो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज इट प्रिजर्व्स straight lines, that this allows us to project only the end points of 3D lines and then draw a 2D line between the projector endpoints। basically वही बात है कि आप क्या कर रहे हो, हर एक वर्टेक्स को, अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हो तो फ्रंट व्यू की वर्टेक्स को एक्सटेंड कर रहे हो, और वो एक्सटेंड पे जो पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके यू आर प्रोड्यूसिंग एन इमेज। तो कैरेक्टर स्केच क्या है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो है ना, 3 तरीके की होती है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। क्या होती है ये, यू डोंट नॉट नीड टू गो इन डिटेल, ठीक है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कैन नॉट गिव एक्यूरेट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट कैन नॉट गिव द एक्यूरेट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और कितनी छोटी इमेज प्रोड्यूस हो रही है ये हमें नहीं पता है, बिकॉज अगर आप जितनी दूरी से देखोगे उतनी छोटी इमेज प्रोड्यूस होगी। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशनल वे। It is forming the realistic image of the object। 3 डायमेंशनल वे का मतलब क्या है कि आपको अगर फ्रंट व्यू देख रहे हो तो फ्रंट व्यू का 2D इमेज ही दिख रहा है, और अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर वाला व्यू देखिएगा, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ कैमरा यू आर पुटिंग अप, ठीक है। और ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज फाइनाइट, द लाइंस, द प्रोजेक्टर्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। पैरेलल प्रोजेक्शन की कैरेक्टर स्केच क्या है? पैरेलल प्रोजेक्शन में आपको एक्यूरेट व्यू मिलता है। इट इज ऑफ 2 टाइप, ऑर्थोग्राफिक एंड ओब्लिक। इट डज नॉट फॉर्म रियलिस्टिक व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड the projector lines are parallel to each other, and the distance of the object from the center of projection is infinite। तो ये तो कैरेक्टर स्केच है पैरेलल और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की। अब यहाँ पे डिफरेंस दिखा हुआ है पर्सपेक्टिव और पैरेलल प्रोजेक्शन का डिफरेंस इन टैबुलर फॉर्म, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू रीड दिस डिफरेंस, और जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज आस्क मी इमीडिएटली। दीपक अटेंडेंस भेज देना बेटा। तो यहाँ पे ओके मैम। हम डिफरेंस कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन पे। पहला डिफरेंस है बिटवीन पर्सपेक्टिव एंड पैरेलल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन, मतलब कि वी आर गिविंग द डेफिनेशन। So you know that what is perspective projection? A perspective projection can be described. How it is described? That we are converging each vertex of the object towards the center of projection, which result in many visual effects of the object. Many visual effects का मतलब क्या है कि अगर आप front view भी देख सकते हो, left view भी देख सकते हो, top view भी देख सकते हो, तो there could be many visual effects। और parallel projection क्या होता है? Parallel projection is a projection of an object in 3-dimensional space onto a fixed plane, जिसको आप बोल रहे हो projection plane, जहां पर line of sight और the projection lines, इनको आप line of sight भी बुला सकते हो, projection lines भी बुला सकते हो, are parallel to each other। It is of 2 type, orthographic and oblique, और it is of 3 type, 1 point, 2 point and 3 type। Accurate view of object आपको किस में मिलता है? Accurate view आपको मिलता है पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर, क्योंकि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में तो फॉर शॉर्टनिंग हो जाती है। फॉर शॉर्टनिंग मतलब इमेज छोटी या बड़ी हो सकती है, तो इसमें आपको एक्यूरेट व्यू पर्सपेक्टिव में नहीं मिलता है। पैरेलल प्रोजेक्शन गिव्स यू एन एक्यूरेट व्यू।
ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि इट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशनल वे, मतलब कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के अंदर आप 3 डायमेंशनल तरीके से देख सकते हो। पैरेलल प्रोजेक्शन में जैसे टेलीस्कोप के अंदर इमेज देखते हो ना, पैरेलल प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वे लाइक ए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में जैसे देखते हो ना कि आप मैग्नीफाई करके जूम करके देख सकते हो, तो टेलीस्कोप वाला एग्जांपल गिव्स बेस्ट विद पैरेलल प्रोजेक्शन। रियलिस्टिक व्यू आपको किस में मिलता है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन गिव्स यू अ रियलिस्टिक व्यू। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। पैरेलल प्रोजेक्शन डज नॉट गिव्स यू अ रियलिस्टिक व्यू। डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस इसमें इनफाइनाइट होता है पैरेलल में, और पर्सपेक्टिव में देयर इज अ फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टर लाइंस इसके अंदर पैरेलल नहीं होती है, दे कन्वर्ज, एंड यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइंस आर पैरेलल। डायग्राम भी बना सकते हो। बेस्ट डिफरेंस जो है दोनों के डेफिनेशन के बाद डायग्राम दे दो छोटे छोटे, है ना। और लाइन ऑफ प्रोजेक्शन जो होती है आर नॉट पैरेलल, यहाँ पे लाइन ऑफ प्रोजेक्शन आर पैरेलल विद ईच अदर। सो डिफरेंस क्लियर है सबको? यस मैम। ये टॉपिक क्लियर हो गया है, प्रोजेक्शन क्या यस होता है? मैम। ठीक है, तो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल, और with this we have I think completed unit 4। छोटा सा टॉपिक मुझे लगता रहता है, हाँ, क्लिपिंग, 3D क्लिपिंग। 3D क्लिपिंग एक टॉपिक रहता है दैट वी विल बी डूइंग टुमारो। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आज सारे नोट्स बना के क्लासरूम पे डाल दूँ, क्योंकि नोट्स तो बने हुए हैं मेरे। आई जस्ट नीड टू मेक अ PDF आउट ऑफ दैट, ठीक है। तो मैं डाल दूंगी, बट आप लोग पढ़ने वाले बनो ना, यू पीपल, मुझे तो लगता है कि बट यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। उसको प्लीज डाउनलोड कर लेना नोट्स को, क्योंकि वहां से क्लासरूम से करप्ट भी हो जाते हैं बहुत बार, ठीक है, क्योंकि वो लिंक शेयर होता है, पूरी फाइल तो वो ड्राइव पे शेयर होती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे कल हमने 3D व्यूइंग पढ़ा था, देन वी हैव स्टडीड व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स, ये सब उसी के अंदर आ जाता है। प्रोजेक्शन क्या होता है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। जितने भी पेपर्स में देखोगे सब जगह यही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सो क्लियर है सबको? क्या होता है पर्सपेक्टिव Yes, प्रोजेक्शन? ma'am. कौन बताएगा? व्हाट इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन? सौरभ, रोल नंबर 51। पूरे सेशन में तुम म्यूट ही रहे हो। क्लास में होते भी हो कि नहीं होते हो? हाँ जी, बोलो। ऋतिक मक्कर ने क्लास नहीं ज्वाइन करी आज। ऋतिक साहू, तुम ही बता दो यस मैम। क्या होता है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्मॉलर साइज में स्मॉल दिखाई देता है जब वो आई एम दूर आस्किंग होता है। डेफिनेशन, पहले तो बेसिक डेफिनेशन बताओ ना बेटा, प्रॉपर्टीज मैम में बाद में। हाँ, perspective projection, object is shown smaller when it is farther you away. have to say simply, what you have to say is